Hello students, welcome to ICSE Board Class 10 Chemistry episode 1.3. We are with chapter Modern Periodic Table and Periodic Properties. So we have seen the characteristics of periods and groups in the long form of periodic table, as well as in that one we have seen this part, that is period, and along with the period we have seen groups. This is from left to right and the group is from top to bottom vertically. We have seen valence electron, we have seen valency, we have already talked about atomic size. Now in this episode we are going to talk about metallic and non-metallic characters, reactivity, nature and gradation. While this one we will see in the next episode. Okay. So let us come to the metallic character, the first property. We have already talked about atomic size. This is the second one, metallic character. Now if you see the metals, then metals have a tendency to lose their valence electron. Now if it is group 1, in group 1 except hydrogen, exceptional case, hydrogen, lithium, sodium, potassium. So here it is 3, here it is 11, here it is 2, 1, here it is 2, 8, 1. So if you see in group 1, the valence electron is 1, and they have tendency to lose electron. Even potassium have tendency to lose 1 electron. So they become, if they lose 1 electron, they become electropositive, that is +1. Or you can say 1 plus. Understood? So sodium is what? Sodium is 1 plus. Potassium is what? 1 plus. Lithium is what? 1 plus. Because they have tendency to lose 1 electron in group 1. Why they are losing it? Because they wanted to achieve octet state. And they become cash ions, that is positive ions. And hence they are considered as electropositive elements. So here if we say lithium, beryllium, boron, that is group 1, group 2, group 3. This is going to give 1 electron. This is going to donate 2 electrons. This is going to donate 3 electrons. Below it, sodium, magnesium, aluminium. This is going to donate 1 electron. This is going to donate 2 electrons. This is going to donate 3 electrons. So if you see, group 1 is ready to donate how many electrons? 1 electrons. Group 2 is ready to donate how many electrons? 2 electrons. Group 3 is ready to donate how many electrons? 3 electrons. In order to achieve what? In order to achieve octet state, that means stable state. Octet state, that means it is stable state. So lithium, beryllium, boron, group 1, group 2, group 3, sodium, magnesium, aluminium, group 1, group 2, group 3, they are all losing electrons and they are increasing by their protons by 1, by 2 and by 3. So they are electropositive elements. So lithium +1, or you can say 1 plus, beryllium 2 plus, boron 3 plus. So likewise sodium, magnesium and aluminium, and they become what? Cash ions, positive, electropositive elements. Now this also depends upon what? This also depends upon the atomic size. The increase in the atomic radius decreases the attraction between the nucleus and the electrons. So here if you see from period, that is from left to right, the atomic size, atomic radius decreases. If you go on this one, so atomic size decreases. So when the atomic size decreases, that means the attraction between the nucleus and electron increases, because the atomic radius जो है वो कम होता जा रहा है. लिथियम के अंदर, बेरिलियम के अंदर, बोरॉन के अंदर, फिर कार्बन के अंदर. तो अगर पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देखोगे तो लिथियम बड़ा है, फिर बेरिलियम उससे छोटा है, बोरॉन उससे छोटा है, कार्बन उससे भी छोटा है, फिर नाइट्रोजन उससे छोटा. ऐसे करते करते इफ यू कीप ऑन गोइंग, द एटॉमिक साइज इज व्हाट? डिक्रीजिंग. नाउ एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है.
अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी देने वाले में से नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं देते तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो फिर वो लेस मेटालिक है। यानी कि पीरियड के अंदर लिथियम ज़्यादा मेटालिक है, पीरियड के अंदर लिथियम ज़्यादा मेटालिक है। आर यू फॉलोइंग इट और नॉट? और अगर मैं उसका ग्रुप लिख रहा हूँ, सपोज इफ आई एम राइटिंग अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम इतना, सोडियम साइज बढ़ती जा रही है, पोटेशियम साइज बढ़ती जा रही है, बराबर। फिर रुबिडियम साइज बढ़ती गई, फिर सीजियम साइज और बढ़ती गई, और फिर फ्रॉन्शियम साइज और बढ़ती गई। सो यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, फ्रॉन्शियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों करता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, जल्दी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाता है तो ग्रुप के अंदर फ्रॉन्शियम इज हाईली मेटालिक, इन ग्रुप फ्रॉन्शियम इज हाईली मेटालिक एंड इन पीरियड, सो पीरियड के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, लिथियम के नीचे सोडियम, यहाँ पे लिथियम के साथ में आता है, लास्ट में आता है नियॉन, ले तो फिर फ्लोरीन लिख दो, और सोडियम के नीचे क्लोरीन, और सोडियम के नीचे क्लोरीन लिख दो। तो लिथियम पीरियड, कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 2। ये कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 3। तो पीरियड के अंदर लिथियम ज़्यादा मेटालिक है, पीरियड नंबर 3 के अंदर सोडियम ज़्यादा मेटालिक है। लेकिन अगर आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, इन दिस वन इफ यू आर सीइंग लाइक दिस, then francium that is in a group 1, francium is more metallic, फ्रॉन्शियम ज़्यादा मेटालिक है। क्यों ज़्यादा मेटालिक है? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर देगा। इससे लिथियम से तो जल्दी रिलीज करने वाला है फ्रॉन्शियम, सोडियम से भी जल्दी रिलीज करेगा, क्योंकि फ्रॉन्शियम के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक जो साइज है बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है कम होता जा रहा है, इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इसलिए ज़्यादा मेटालिक है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आपको याद रखना है। सो मैंने पहले ही बता दिया था कि इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस, जितना नज़दीक है, जितना नज़दीक है, बराबर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? हाई। इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, लेगा इजीली। यहां पर जितना डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा इजीली। लेकिन लेने की बात आती है तो हार्ड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर ये याद रहता है तो जल्दी आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। लेट अस गो थ्रू इट। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, वो तो सही बात है। अट्रैक्शन बिटवीन देम ऑल्सो बिकम्स लूज, बिकॉज ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज रिमूव मोर इजीली, और वो ज़्यादा मेटालिक बन जाता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है, यानी कि प्रोटॉन इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर कि भाई एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है और वो ज़्यादा मेटालिक बनता है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा है, वो मेटालिक नहीं होने देगा, क्योंकि वो जल्दी नहीं है, तो मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। इतना याद रखना है। अक्रॉस द पीरियड के अंदर ऐसा कि अभी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाना है ना, तो यहाँ पर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर नियॉन वाला एक तुरंत बढ़े। हमें नियॉन से कुछ लेना देना नहीं, हम ऐसा जा रही है, हम ऐसे जा रहे हैं।
यानी कि एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया, एटॉमिक साइज कम होती गई और वो ज़्यादा मेटालिक नहीं बना, वो ज़्यादा नॉन मेटालिक बनता जा रहा है. इट बिकम्स मोर एंड मोर नॉन मेटालिक. दैट व्हाट इट इज. So if we move from left to right, electron, this one charge increases, nuclear charge increases, thus atomic size decreases, and it cannot lose the element. Element cannot lose the electron easily. ग्रुप में भी इस तरह से, जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप के नीचे अंदर गए तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे. यहाँ पे एक था, जैसे कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को नहीं गिनते, तो फिर लिथियम में 2, फिर सोडियम में 3, बराबर, फिर पोटेशियम में 4, बढ़ता गया. सो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता गया, बराबर. तो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ता गया, आराम से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए वो ज़्यादा मेटालिक बन जाता है. बिकॉज द एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. ये अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी आंसर आराम से लिख सकते हो. सो चेक दिस वन. यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए, साइज कम होती जा रही है. तो यहाँ पे सोडियम बहुत बड़ा है, मैग्नीशियम उससे छोटा, फिर एल्यूमिनियम उससे भी छोटा, फिर ये छोटा, बराबर, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, और आर्गॉन फिर बड़ा. तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया. सो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. What is decreasing? Atomic size is decreasing. What is increasing? Force of attraction is increasing. तो इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा. यहाँ पर जिसके पास एटॉमिक साइज बड़ा है वो दे पाएगा. तो किसके अंदर एटॉमिक साइज बड़ा है? सोडियम के पास, इसलिए सोडियम ज़्यादा मेटल है. ये थोड़ा कम मेटल है, ये थोड़ा कम मेटल है, फिर ये मेटलॉइड, फिर नॉन मेटल हो गया, बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. आप ग्रुप में आते हो तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर कितने सेल्स है? 2 सेल्स है. यहाँ पे कितने सेल्स है? 3 सेल्स है. यहाँ पे कितने सेल्स है? 4 सेल्स है. यहाँ पे कितने सेल्स है? 5 सेल्स है. तो सी द साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज एटॉमिक सेल्स आर इंक्रीजिंग. एटॉमिक सेल इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है. क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है तो इलेक्ट्रॉन पहले दे देगा. इसमें ज़्यादातर कौन मेटालिक है? मोस्ट मेटालिक है वो है फ्रॉन्शियम. फ्रॉन्शियम ज़्यादा मेटालिक है. लेट अस गो टू द अनदर पार्ट दैट इज नॉन मेटालिक. अगर आप नॉन मेटालिक में देखो तो नॉन मेटालिक के अंदर क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है जल्दी, इलेक्ट्रॉन्स कौन जल्दी ले लेगा, उसे कहते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स. सो नॉन मेटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन पहले लेगा? तो अगर आप देखो लिथियम से लेके पीछे फ्लोरीन तक लिथियम इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? नहीं, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज पीरियड के अंदर लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा होता है. लेट अस चेक इट आउट दिस वन वंस अगेन. सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीरो ग्रुप बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड. लिथियम का एटॉमिक साइज, बेरिलियम का एटॉमिक साइज, बोरोन का एटॉमिक साइज, कार्बन का एटॉमिक साइज, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज. नाउ सी, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेना है उसको, तो कौन इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? जिसका एटॉमिक साइज कम हो. ये पीरियड है, तो पीरियड के अंदर हमें देखना है कि विच वन इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. कौन अट्रैक्ट कर सकता है? जिसका एटॉमिक साइज छोटा हो, लेस हो. तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज किसका लेस है? फ्लोरीन का. सो फ्लोरीन विल बी एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स मच एट अ फास्टर रेट देन द अदर वंस. सो दिस वन इज मोस्ट नॉन मेटालिक. तो ये क्या हो गया? नॉन मेटालिक हो गया, बराबर. ये पीरियड के अंदर अगर आप ग्रुप में देखो, अगर आप ग्रुप में देखोगे तो लास्ट में एस्टेटैन होगा, बराबर. फ्लोरीन, क्लोरीन, देन विच वन? फ्लोरीन, क्लोरीन, देन अनदर वन इज ऑल्सो देन नॉट पीरियड. जस्ट पता चला? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, नहीं ब्रोमीन, देन आयोडीन. तो ये सब के अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि सबके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे.
सबके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते गए तो फिर उसका जो एटॉमिक साइज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जितना फ्लोरीन कर पाता है। इसलिए सेवेंथ ग्रुप के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट नॉन मेटालिक कौन है, वो फ्लोरीन ही है, बराबर। और अगर ग्रुप 1 में देखते हो तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, लिथियम, क्योंकि फ्रॉन्शियम इज मोस्ट मेटालिक, तो ग्रुप के अंदर लेस मेटालिक कौन हुआ, लिथियम। सो दिस इज व्हाट इट इज, अंडरस्टूड। सो यू शुड नो अबाउट द, जो देता है वो मेटल हो जाता है और जो लेता है वो नॉन मेटल हो जाता है। जो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन्स देगा, दैट विल बी द मोस्ट मेटालिक। इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता है, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो। एटॉमिक साइज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा ना, आपको पता नहीं है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, एटॉमिक साइज इज लेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इज लेस, एटॉमिक साइज इज मोर। एटॉमिक साइज कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन नॉट इजीली डोनेटेड। यहाँ पे एटॉमिक साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली डोनेटेड। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इसलिए ऐसे में न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला होता है, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, एटॉमिक साइज बड़ी होती है, तो जल्दी वो इजीली डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, और इजीली डोनेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन नहीं कर सकता, कैन नॉट इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स। जिसका एटॉमिक साइज बड़ा हो तो वो क्या हो जाता है, मेटालिक कैरेक्टर। तो आप देखो लिथियम के अंदर और फ्लोरीन के अंदर किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, लिथियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, नहीं, वो नहीं लेगा, समझ में आया, वो दे देगा किसके अंदर, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। वो पीरियड में देखते हैं, समझ में आया। अगर आप इतना याद रखोगे तो इट बिकम्स रियली इजी। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। So check this one out. Lithium 3 electrons, 4, 5, 6 जो मैंने बताया वही 7, 6, then 7, then 8, and then this one is 9. So now if you see, उन लोग में देखो तो एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है, क्यों, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा, एटॉमिक साइज उसका कम हो रहा है, तो जो देने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, बट जो लेने की शक्ति है, द कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग बिकॉज द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। सो लिथियम मेटल, बेरिलियम मेटल, boron is non-metal, that is metalloid, carbon is non-metal, and it keeps on going up till fluorine. So fluorine is non-metallic. If you see in the group, fluorine is most non-metallic and astatine is less non-metallic. इसलिए almost all the elements in the periodic table, francium is most electropositive element and the fluorine is most electronegative element, क्योंकि उसका जो एटॉमिक साइज है बहुत छोटा है, फ्रांशियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से दे देगा, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन आराम से ले लेगा उसकी साइज के हिसाब से, इसलिए वो मोस्ट नॉन मेटालिक। Okay, let us begin with the next one, chemical reactivity. Chemical reactivity का मतलब क्या, एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या तो फिर गेन इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन या तो फिर गेन इलेक्ट्रॉन। कहाँ से,
आउटर मोस्ट सेल्स है, सो यानी कि वैलेंस सेल्स है। इन केस ऑफ मेटल्स ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन कौन करता है? मेटल्स। कौन से ग्रुप आया? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। एंड गेन इलेक्ट्रॉन कौन कर सकता है? ग्रुप 7, 6 एंड 5, बराबर। 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 5 - 3, 6 - 2 and 7 - 1. In case of non-metals, the elements have a greater tendency to gain electron. Across the period आप देखोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी, अगर आप देखोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले डिक्रीज होगी और देन इंक्रीजेस, क्योंकि पीरियड के अंदर लिथियम, सो ईयर लिथियम से हमें कहाँ जाना है? फ्लोरीन तक। तो पहले लिथियम की 1, फिर बेरिलियम की 2, बोरॉन, सो ओके लेट मी राइट डाउन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो ईयर बेरिलियम 3, then 4, then it is -3, -2, -1। तो पहले क्या हुआ? इंक्रीज हुआ और फिर सडनली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? तो ये हो रहा है। तो अगर आप देखो ये वैलेंसी के बारे में, दिस इज अबाउट व्हाट? वैलेंसी। पहले कौन सी थी वैलेंसी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर -3, -2, -1। ये ग्रुप नंबर 7, ये 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और ये हमारा पीरियड है। दिस इज पीरियड नंबर 2, दिस इज सेकेंड पीरियड। सो व्हाट इट सेज, as one move from left to right in a period, the chemical reactivity first decreases। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज हो गई, बराबर, क्योंकि वो क्या करता है? रिएक्टिविटी का टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू द कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल। पहले क्या होगा? डिक्रीज, एंड देन धीरे धीरे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। इन एग्जाम्पल थर्ड पीरियड, the first reactivity decrease from sodium to silicon and then increases from phosphorus to chlorine। तो यहाँ पर भी लिथियम से लेके कार्बन तक का जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गया? डिक्रीज। और यहाँ पे क्या हो गया? टिल फ्लोरीन इट इंक्रीज। हाँ, वैलेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसकी वजह से यहाँ पर लिथियम से कार्बन तक का जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होगा और फिर धीरे धीरे वापस रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज, लिथियम का एटॉमिक साइज कैसा है? बड़ा, बेरिलियम का छोटा, फिर बोरोन का छोटा, फिर कार्बन का छोटा। समझ में आ रहा है? एटॉमिक साइज के ऊपर भी रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है। इन अ पीरियड विच वन इज हैविंग हाई एटॉमिक मीन्स मोर एटॉमिक साइज? लिथियम। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं सकता, लिथियम निकाल देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन पहले? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो हाई है। सो हियर डाउन द ग्रुप, इफ यू सी द डाउन द ग्रुप, देन व्हाइल गोइंग इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। फ्रॉन्शियम की ज़्यादा, बिकॉज इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इज एटॉमिक size। फिर cesium, rubidium, potassium, sodium and lithium। As the number of electron shell increases while down the group, so does the tendency to lose electron from the valence shell increases, and hence the element tend to more reactive। All metals are the good reducing agents as they help in the reduction by providing electrons। This is an important point। And non-metals, while moving down from the group, non-metals chemical activity of an element increases, that is from element decreases, that is from what? That is from fluorine, bromine, iodine and acetylene। As the number of cell increases while going down the group, हम नीचे जा रहे हैं ना, so does the tendency to gain electron। वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है? जिसका एटॉमिक साइज कम हो वो। तो किसका एटॉमिक साइज कम है? फ्लोरीन का। किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है? एटस्टेन का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी वो कम होती जा रही है। हैंस इन द elements tends to be, hence the element tends to be less reactive। So while moving down the group of a non-metals,
द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट की जो केमिकल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. फ्लोरीन में ज़्यादा, क्लोरीन में कम, ब्रोमीन में कम, फिर आयोडीन में कम और एस्टेडाइन में और भी कम. ऑल द मेटल्स आर अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Sorry, all non-metals are good oxidizing agent and they help in oxidation. This is an important point that you have to keep in mind. So here you see the reactivity. So chemical reactivity from sodium to chlorine. You see from sodium to chlorine. 11, 12, 13. Right? So this is very reactive and then becomes less reactive and then again the reactivity increases. Because this has a tendency to give electron, tendency to gain electron and gain electron. In that one, in this case, chlorine is more reactive than the others and sodium is more reactive than the other metals, magnesium and aluminum. If you see in the group, lithium less reactive because it has only 2 shells. This has 3 shells. This has 4 shells. This has 5, 6, 7. That means atomic size increases. It has more tendency to lose electron. So that's why francium is more reactive than the other elements in the group. Check it out in the group number 7, 17. Here fluorine 9, only 2 shells, 3 shells, 4, 5, 6. Atomic size is more. It cannot gain electron easily because of the less electron attraction between the electrons and the nucleus. This will be accepting the electron faster than the others because of the less atomic size. Hence it is more electroreactive, or you can say it is more chemical reactive. Now this is related to the melting point. This is related to melting point and boiling point. Those elements which can lose electron faster are having less melting point and as well as boiling point. So while going down the group, the physical properties such as melting point and boiling point decreases. Why decreases? Because the atomic size increases, electron losing capacity is more. While going down the group of non-metals, physical properties such as melting point and boiling point increases. Why? Because the density of the non-metal gradually increases. Their size increases. So size increases, that means melting point and boiling point also increases. On the moving across the period from left to right, melting point and boiling point generally increases. Why it increases? Up to 14 group and then it starts decreasing. So that is 1, 2, 3, 4. So it increases and then it starts decreasing. 5, 6, 7. It starts decreasing. So you have to keep all these things in mind. Same sort of a theory: atomic size, losing of electrons and gaining of electrons. So check out the group 1. This is in group 1. Lithium, sodium, potassium. What is the melting point and boiling point? They are high. Why? Because the number of cells are less. Bonding break करना है. Bonding break करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. So that's why the melting point and boiling point in lithium is more. Sodium कम, क्योंकि इसके अंदर 3 cells आ गए. पोटेशियम के 1, 2, 3, 4 cells आ गए, इसलिए उसको बॉन्डिंग तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए. इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम लो है. सो इट इज़ लो देन द लिथियम एंड सोडियम. बट अगर आप 7th में देखो, 7th में धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम है, माइनस में. धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एज यू गो डाउन. So melting point and boiling point increases in a 17th group, or you can say 7th group. While here in metals में धीरे धीरे melting point and boiling point क्या होता जा रहा है? Decrease होता है. Metals are basically solid. These are basically gas and liquid. That is a thing. इसलिए उसको बॉयल करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना उसको फ्रीज करने में लगता है. तो फ्रीज के अंदर इट रिक्वायर्स वेरी लेस टेम्परेचर. बॉइलिंग करने के लिए गैसियस फॉर्म में माइनस में जब वेरी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड. सॉलिड को करने के लिए इट रिक्वायर्स
84 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग करना पड़ेगा। किसको? आयोडीन को, क्योंकि वो सॉलिड में है, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये भी देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो दैट मीन्स इफ़ यू गो, फ्लोरीन के लिए कितना? -220, क्लोरीन के लिए कितना बढ़ गया? यहाँ पे 72 हो गया, यहाँ पे 140। दैट मीन्स व्हेन यू आर going from top to bottom in a group 17, the boiling point and melting point, both of them are going to increase, because all of them are basically in gaseous form, gaseous and liquid form, and iodine is in solid form. Okay. So I hope you understood about this melting point, boiling point, metallic and non-metallic characteristics, reactivity of the elements. आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इजीली। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरह से ले नहीं सकेगा बिकॉज ऑफ द साइज। तो इतना आपको याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द होल ऑफ दिस चैप्टर। द रिमेनिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, electron negativity and electron affinity, we'll do it in the next episode. Thanks very much guys, and thanks for your patience.